मैक्सिमम लोग हथियार जाता है, टूट जाता है, भाग जाता है। यहाँ पर आपको जज्बों का, उम्मीदों का, निराशाओं का अनगिनत कहानियां सुनने को मिली। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला। पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल का है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होगा। इतना पढ़ के भी ना खाली लगता है अंदर से। मेहनत कोई नहीं देखता। लोग आएंगे, फेलियर का मेडल डालेंगे और बोलेंगे सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। Akash. Yes, ma'am. What is your UPSC roll number? Ma'am, 63,11,005. And what is the sum of all the digits? 16, ma'am. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. अपनी भाषा को सरल बना के रखना है, कट पिट ज्यादा नहीं करना है, डायग्राम बनाना है, आंसर राइटिंग जैसी डिमांड की गई हो क्वेश्चन में उस डिमांड को ही पूरा करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा कि कुछ और ही लिखते हैं। क्वेश्चन का डिमांड सिर्फ आप पूरा कर दो, 50% मार्क्स मिल जाएंगे। This exam is the easiest way to enter the governance structure of our country. Now you will think this exam is not easy. Of course this exam is not easy. But compared to this method, election लड़ने से ये exam निकालना बहुत आसान है। कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद exam निकाला है, right? So this is the easiest way to enter the governance structure of our country. This logic also tells us that we have to be experts in constitution, laws, economy, society, history, geography of India. Only then we will be worthy of entering this position. कोई बता सकता है कि ये जो बोर्ड पे नंबर्स लिखे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर, इससे ज्यादा तो लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है। मतलब इतनी लड़कियों ने तुझे नोटिस तो किया? अरे सर, आप वो तो हंसते हंसते उठा लेंगे बस्ते। क्या पता हम 3 साल की बात है, फिर आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हरियाणा में बोल दूं तो आपका हमारा बहुत मजाक उड़ावा उड़ा है। बोला भाई इनका कल्चर तो एग्रीकल्चर है, वाह भाई है। और एग्रीकल्चर न्यू है, को उगावे है, को खावे है, को बेचे है, को आगे बढ़ावा है। सारा हरियाणा ही नहीं पूरा देश एग्रीकल्चर में टिका हुआ है। तो हमारा कल्चर बहुत ही एक सुनहरा कल्चर है। He was keen to brief you about his visit to Ukraine and his meeting with President Zelensky. And he wanted me to come specially and personally and brief you about the talks. The talk was in a very close format. It was only the two leaders. He had his two persons with him. I happened to be with the Prime Minister. So I was his witness to the I attended that conversation. सारे
के साथ बलात्कार किया? सही बतानी, फाड़ दूंगी बीच में से। कितने के साथ करा बता? 6 देख लो भाई साहब, आपके सामने 6 कुतिया कबूल साले। मैं और जसपाल जी अभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, मुकदमा डलेगा उस पे। जसपाल जी कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, दिल को तसल्ली मिल गई। दल्ला पकड़ा गया, 13 कुत्तों के साथ बलात्कार किया उसने। सोचो क्या घटिया आदमी है। ये कौन सा एरिया है? कैलाश नगर में नाले के पास जिस आदमी ने 13 कुत्तों का रेप किया था, हमने अभी उसे पुलिस से पकड़वा दिया है और अभी उस पर मुकदमा डल रहा है और वो अरेस्ट हो रहा है। Because they are criminals. ആ bloody criminalsനോട്, കൊലപാതകികളോട് പോലീസ് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് നെഞ്ചിൽ കൈവച്ച് പറയാൻ ഈ കോടതി മുറിയിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമെങ്കിൽ I will challenge them. May I? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? വിധി പ്രസ്താവിക്കാൻ മീഡിയകളും ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ പോലീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കറുത്ത കോട്ടും ഗൗണും ഇട്ട് കുറെ കോമാളികൾ കോടതിയെ കൊണ്ടുപോലും അവരെ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ എന്ന് പറയിപ്പിച്ച പച്ചയായ ജാതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഉത്തരം തന്നേ പറ്റൂ. കാരണം ഈ രാജ്യം ഒരുത്തന്റെയും തന്തയുടെ വകയല്ല, ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. No, you're lying. You're lying. You're lying. Just answer my question. Why are you threatening us like this? Exactly my point. Objection, Your Honor. Counsels. He was doing umar ke sath hi mere, Your Honor. What did you say, Miss Meera Krishnan? What did you tell him? client का नंबर सुन रहे हैं। Objection. अगर control particle please. What did you say? Sir, this is bloody bullshit. சொல்லுங்க. இப்படி நரைய இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களா இந்த மாதிரி தான் நடக்கும். அப்படியெல்லாம் நடக்காது. நாளை என்றும் நம் கையில் இல்லை, நாம் யாவும் தேவன் கை பொம்மைகளே. என்றால் கூட போராடு நண்பா, என்றைக்கும் தோற்காது உண்மைகளே. செங்கோட்டை பொன்னில்லாமல் ஓடு, கோல்டு தேடி வரும் உங்கள் வாழும் Meet your new ACP, Adityan, IPS. लाल, मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा, पूजा पाठ कुछ नहीं। मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कदी कदी मलेरिया फैलता है और रब तो हमारे अंदर है जी, मम्मी दे अंदर, मेरे अंदर, तुहाडे अंदर। क्रेटोस और ब्रॉक ने उस महिला से मिलने के लिए यात्रा की जिसने क्रेटोस के रक्त से एक शक्तिशाली भाला बनाया, लेकिन इस भाले को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उस महिला के वरदान की आवश्यकता थी। ब्रॉक ने उससे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन सकी क्योंकि वह केवल आत्माओं से बात कर सकती थी, न कि शरीर से। इस प्रकार ब्रॉक को पता चला कि वह एक आत्माहीन प्राणी है, परंतु क्रेटोस ने इस समस्या को सूझबूझ से संभाला और अपनी विनम्रता के साथ ब्रॉक से वरदान मांगने का निर्णय लिया, क्योंकि ब्रॉक स्वयं एक महान और निपुण कारीगर था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ब्रॉक ने अंततः अपनी सहमति दे दी। इस शस्त्र की धार न्याय के मार्ग पर चले, इसका प्रयोग करने वाला अमिट विजय प्राप्त करे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ये शांति से विश्राम करे। तू बता, मेरे एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं, पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है।
गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस। आचार्य, आप इतने समय से मुझे ये औषधि पिला रहे, परंतु आपने कभी बताया नहीं कि इस औषधि में है क्या? इस औषधि में विष मिला है। हाँ जनाब, तुम्हारी बाल्यावस्था से प्रतिदिन मैं इस औषधि में तीव्र विष की एक बूंद मिलाता आया हूं। परंतु आचार्य, आपके मात्र एक संकेत में मैं तो वैसे भी अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। मुझे तुम्हारी गुरु भक्ति पर किंचित मात्र भी संदेह नहीं है चंद्रकांत। ये विष मैं तुम्हें तुम्हारी ही भलाई के लिए पिलाता हूं। जिस पथ पर तुम अग्रसर हो उसमें पग पग पर संकट है, छल है। शत्रु तुम पर कभी शक्ति से वार करेगा और कभी छल से। शत्रु यदि तुम पर शक्ति से वार करता है तो तुम उसे अपनी तलवार से रोक लो, इसका पूर्ण विश्वास है मुझे। किंतु यदि शत्रु तुम्हें छल से विष दे तो उसके विरुद्ध क्या करोगे तुम? इसका भी तो कोई ना कोई कवच तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि जो आने वाले संकटों की पहले से तैयारी नहीं करते, समझ लो कि वो अपने लिए और संकट खड़े कर रहे हैं। ये विष की बूंद बूंद जो मैं तुम्हें बाल्यावस्था से प्रतिदिन पिलाता आया, ये तुम्हें विष के हर आक्रमण से बचाए। इससे तुम्हारे शरीर में हर प्रकार के विष से लड़ने की नैसर्गिक क्षमता विकसित हो जाएगी। यदि किसी ने छल से तुम्हें विष दे भी दिया, ये तुम्हें उससे भी बचाएगी। वह चुपके से उस पर वार कर बक्सा लेकर वहां से शीघ्र भागने का प्रयास करती है, लेकिन फिर ये लड़की एक बिल्ली की भांति सोना लेकर भाग रही है। इसे तो अंदाजा भी नहीं है कि इस बक्से में क्या है। नाउए पकड़ी जाती है। ठीक उसी समय उसके पिताश्री वहां पहुंच जाते हैं। ये बक्सा तुम्हारे जैसों के लिए नहीं बना। बिल्कुल सही, क्योंकि इस बक्से पर सिर्फ हमारा अधिकार है। उसके पिताश्री अपनी जान की बाजी लगाकर उसके प्राण बचाने का प्रयास करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी जीत नामुमकिन है। वह इस उम्मीद से लड़े कि शायद उनकी पुत्री किसी तरह बच जाए। सभी सामुराई नाओए के पिताश्री को मार डालते हैं। अपने पिता को अंतिम अलविदा कहने के पूर्व नाओए अपनी पीड़ित आंखों में उन सभी हत्यारों की आखिरी झलक कैद कर लेती है। हम तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। घायल नाओए की सहायता करने एक नन्हा युवक और उसके दादा पधारते हैं।